don't reject you and they don't cherish you, but they just tolerate you. क्या करें, मेरी औलाद है. Where else do I take it? So there is toleration. And number 3 is excitement. Number 3 is boost. Number 3 is energy. That you look at a difference and you get excited, you get fascinated by it. कि यार ये मुझसे अलग है. What an interesting fact. But the statement remains the same. The choice is yours. What language do you use when you look at this beautiful lady in a wheelchair? When you look at this beautiful lady on a wheelchair, and it doesn't occur to you that, oh, how are we going to handle it? But you say, oh wow, look at how she manages her life. I've seen her. She's this room, this. Just come back from a training in Islam, still going on. I have to report back to it tomorrow morning. जहाँ पे एक बंदा जो कि देख नहीं सकता ट्रेनिंग कराता है, 25 लोगों को वो हैंडल करता है. आवाज आती है, वो उसने जी कह रहे थे, वो नाम एक मर्तबा सुनता है और याद कर लेता है. What a beautiful difference. In this audience alone, मैं इस्लामाबाद में एक ऐसा बंदा छोड़ के आया हूँ जो भूरा है. भूरा यानी उसके बाल सफेद हैं, दिखने में थोड़ा सा अंग्रेज लगना शुरू हो गया, पठान, और ऊपर से बाल अजीब तरह से सफेद हो गए. उसको तालिबान उठा के ले गए. He was with them for 18 days. 18 days straight. उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, उसको लिटाया, उसकी गर्दन पे छुरी चलाई है, ऐसे के कटे ना वो चलाई है, और दूसरी वीडियो के अंदर दिखाया कि उसकी गर्दन अलग है, और उसके घर वालों को भेजी है. To that level, just on the fact that he looks like an Angrez, he looks like an American. He was जिस तरीके से अभी ज़ैद स्टोरी नहीं बता सका, वो अपनी स्टोरी नहीं बता सक रहा था, वो इतना ज्यादा डरा हुआ था उससे. कहता है जब लेटे हुए होते हैं ना और गर्दन पे छुपी होती है, you don't know what it feels like, you can never feel it. हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शायद बहुत सारी डिसेबिलिटीज रखते हो या बहुत सारी डिफरेंसेस रखते हो, लेकिन नहीं वॉइस करते. Again, sexuality, because you're connected with CDA, is another issue. And we see it every day. So there are 3 levels of this, and which one is our choice is the question here. What do we take from here is the question. But right now I'm going to play a prayer. This prayer is very old. You've all heard this prayer. पुरानी दुआ है, लेकिन मुझे लगता है बहुत उसका एक लफ्ज बहुत माने रखता है. वो प्ले करने के बाद मैं आपको एक आखिरी स्टोरी बताऊंगा, and then we'll close. So if you can please play the prayer.
we are united in our diversity. United in our diversity, that's the concept which we must remember. Diversity is a fact. You can't undo it. Diversity is a fact. But pluralism is a value. Pluralism is a choice. कि आप उसको cherish करें, ये आपकी choice है. So I want you to practice it right now. Just quick minutes here. What we will do is we'll play some music here. I want you to connect with that music. I'm sure आप में से कुछ लोग उससे ज़्यादा connect करेंगे. And while we play this music, I'll quickly tell you a trait of this com so that we can shed some differences here. And we can come to acknowledging, come to cherishing these differences. So let's have the first one. And if you respond to it, you can stand up and you can involve other people as well while you respond to this music.
people who would rather like Michael Jackson to be played here. We love you too. And that's the diversity that we have even in this song. So thank you very much for responding to this. You're beautiful. You're beautiful. On the last note to some caller. Sayoni is about soulmate. The literal meaning is soulmate. और सोलमेट से मुराद ये कि ना सिर्फ वो जिनसे आपको मोहब्बत हो, बट कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की इंतहा ये कि आपको हर इंसान में, हर जर्रे में खुदा दिखना शुरू हो जाए। कि आप जमीन पे भी इस अंदाज से चले कि कोई आप पे चलता तो आपको कितनी तकलीफ होती। You have that sense of the world. You're that conscious, wherein you can see anyone around you and see God in them. That is Sayoni. Change. हम सारे के सारे change की बात करते हैं. But let me tell you what change for me is. Change just when you leave this. जब आप इस हॉल से बाहर निकले तो आप इस अंदाज से निकले. ये जो तमाम चीजें नीचे पड़ी हुई हैं कि इस तरीके से उसको उठा के जाए और उसकी हालत ऐसे ही छोड़े कि सफाई करने वाले आके कहे ओए इवेंट ही नहीं हुआ कोई. That is stepping up for change. You have to step up for change. If you have to talk about change when you go home, जब आप घर जाए और अम्मा पूछे कि बेटा कैसा रहा, तो सिर्फ ये ना कहे कि अच्छा था और अपने कमरे में चले जाएं, बल्कि बैठ के बताएं अम्मा आज क्या क्या बात हुई, आज क्या क्या खूबसूरत बात है. जब वो कहें ये सारी फजूल बात है तो आप उनका हाथ पकड़ के नहीं नहीं अम्मा सुने तो मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या हुआ, and you engage them into that conversation. That is change. Change is when you leave. Anyone be a victim of discrimination. The moment you hear a different idea, you should be the first one to encourage it, and you should be the one who gets and you should be the one who can say किस अंदाज में ये हमसे अलग है, किस अंदाज में ये हमसे अलग है. That's the excitement. And lastly, to sum it all, because we have the closing ceremony waiting. To sum it all, here is an analogy for you to remember for life. And this analogy again comes from a जुम्मे का खुतबा, जहाँ से हम में से कोई wisdom expect नहीं करता. Unfortunately, ज्यादातर लोग उस वक्त पहुंचते हैं जब अरबिक खुतबा शुरू होता है, जो कि किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उससे पहले की जो तकरीर होती है, which is supposed to be important part. And I remember in my तबलीग time मैं इमाम बारगाह में गया था और उस वक्त जुम्मे के खुतबे में बताया जा रहा था कि अब Windows XP आ गई है. तो 98 छोटे, what a beautiful खुतबा that was. I loved it. That's what a masjid is supposed to be. But here is this analogy कि आपकी इब्तिदा मट्टी है. मट्टी is where you have come from. और आपकी इंतहा भी मट्टी है क्योंकि आपने मट्टी में वापस जाना है. So your life has to be in line with the principles of मट्टी. आपने अपनी जिंदगी मट्टी के उसूलों के तहत जीनी है. मट्टी के 4 बड़ी सिफात हैं. नंबर 1, मट्टी के अंदर ह्यूमिलिटी होती है. वो महल में भी इस्तेमाल होती है और वो छोटे से घर में भी इस्तेमाल होती है और माइंड नहीं करती कि मुझे किस जगह लगाया जा रहा है. Just fix it. It has been. आपकी शान एसपीज बिल्डर्स की होनी चाहिए कि आप बादशाहों से मिले, आप अबरारों से मिले तो अबरार को ये लगता है कि ये बाहर है, ये कुछ ऐसा नहीं है, और आप बाहर जाए और फकीरों से मिले और फकीर को ये ना लगे कि ये बहुत बड़ी चीज है. That is what this is. About humility, हज़रत अली का कौल है कि जिस इंसान को गंदी छींक से बनाया गया है और जिसने कल जाके कीड़ों की ग़िज़ा बन जाना है, वो गुरूर का तसव्वुर भी कैसे कर सकता है. So what is this pride about? What is this? Number two factor of मट्टी कि मट्टी छुपाती है. मट्टी चीजों को सामने नहीं लाती, मट्टी छुपाती है और छुपाने में आपको मिसाल आपके लिए दूंगा. नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मट्टी है कि वो एब्सॉर्ब करती है. उसको जो चीज जहां से मिलती है वो उसको अपना बना लेती है, वो उसको जस्ट करती है. मैं एक मिसाल देता हूँ. खलील जिब्रान ने कहा था मैंने बदतमीज लोगों से तमीज करना सीखी है, मैंने बातूनी लोगों से खामोशी सीखी है और मैंने बेअदब लोगों से बाअदब होना सीखा है.
Yet I am so ungrateful to all these teachers. हकीम लुकमान ने कहा था मैंने बेवकूफों में बैठ के इल्म हासिल किया है, क्योंकि वो जो कहते थे मैं दादू उसका उल्टा कर लेता था, सही हो जाता था। कि मट्टी जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है। आप मट्टी के अंदर गंदगी डालें, वो उसमें से खाद बनाती है, वो उसमें से फर्टिलिटी लाती है। कन्वर्ट्स योर एंड माय शिट इनटू फर्टिलिटी। और जो फल उसमें से आता है उसमें उसका जायका नहीं आता, उसमें उसकी सूंघ नहीं आती। हमारा भी आपका नेक्स्ट टाइम यू लेकर अ जिसमें वीडियो करके देखा था, लोग डंडे लेके खड़े थे, एग्रेसिव हो रहे थे। आई लव दैट एनर्जी दैट वी सॉ 3 days ago। जो काम सड़क पे आपको देख के फ्लाइंग किक्स कंकु की तरह वो जो शटर तोड़ते थे। My goodness, if that energy is put into a sports ground, we can win any Olympic of the world. It was beautiful. Just transformation. And a misal of the another characteristic here is a very powerful example कि नबी के पास एक कोई बंदा है जो मजाक उड़ाना चाहता था, और वो रात उसने गुजारी और सुबह निकलने से पहले उसने गंदगी literally shat on the bed and left, smiling that he had done his trip. कुछ होके तो उसने बड़ा कमाल किया, गया आगे और उसको ख्याल है कि वो कोई चीज भूल गया, तो पलट के वापस आया तो देखा कि this is रहमतुल आलमीन, this is the prophet, अपने हाथों से उस गंदगी को साफ कर रहे हैं। He stopped, he's taken aback and he asked, थोड़ी देर बाद पूछता है कि आपको ये काम अपने हाथ से करने की क्या जरूरत थी, आप किसी और को बुला लेते हैं ये काम करने के लिए, आप इतना बड़ा मर्तबा रखते हैं। And the prophet said a beautiful thing. He said कि मैं किसी भी और को बुला सकता था, लेकिन किसी और को बुलाता तो उसको पता चल जाता कि ये गंदगी तूने फैलाई है, और मेरा मज़हब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तेरी